So, hi everyone. My name is Ashish Mittal. I am the Vice President with the Policy Exchange and look after the sales and distribution. So, basically, Policy Exchange is in the business of investment in pre-owned policies. We are trying to create a secondary market for pre-owned policies. What are the pre-owned policies? The policies which have already been bought, purchased by someone else. We call them policy holders, right? So there's a typical example of ULIP where there's a 5-year lock-in. Somebody has invested for 2 years, 1 lakh each for a year. The total sum he has invested is 2 lakh. And as of now, the current fund value is 2.5 lakh. So this is the assumption here. This is the assumption here. Right? And since this policy is getting assigned, so we use section 38 for assignment, which is the a section dedicated for process of assignment in the Insurance Act, right? Anyone has any doubt can unmute and ask. So my assumption here is that so since this policy is getting premature withdrawal for the policy holder, of course he gets the little less what he has paid. So he has paid 2 lakhs in our example, and we are assuming that he'll get 1.5 against this. So the current fund value is 2.5. He's getting 1.5. So this discounting is the immediate gain for the investor. And right. And once this assignment is happening, endorsement is happening, we park everything to a debt fund on day one of endorsement. So, just to summarize how this is happening, some investor is paying 2.5 lakh to get 3.5 lakh on day one. So there's a 15 to 20% jump on day one in the value, and then it grows at 7 to 8% for remaining period of the maturity. So there's a 5-year policy. If somebody is getting entry into third year, he has to wait for next 2 years to get the liquidation of the policy. Anyone has any doubt, he can ask, he or she can ask. Good evening to you, Ashish. Could I Hi. pose a question? Rohit. Hi, Rohit. Good evening to you. Yeah, hi. Am I audible to you clearly? Yes, completely audible. Can Please I tell ask me. a couple of questions? Please. See, you are referring to the IRDAI Act Section 38 for because this is a very niche product and a novel product. We are not much aware about this. We are aware of reinsurance, of course, but not policy exchange Assignment. assignments. Correct. So here, number one question is that suppose a base investor who has invested in a ULIP, say through HDFC Bank, is now trying to premature exit his ULIP due to personal reasons. Correct. So is this trading done on a organized secondary market like bonds, or where is this trading being done? So first of all, Rohit, very good question. And trading in the policies are not allowed. Okay. So this assignment is just one time exit option available, just one time, right? But this policy once assigned cannot be. So the second buyer needs to hold it to maturity. Is that correct? Hence, the trading in the policy is not allowed. This is the underlying principle of Section 38. It is a one-time exit option available for the policyholder from a fixed maturity product. Because in ULIP, there's a lock-in. If somebody has invested, it's a 5 hard years. money of the investor. But because of the login guideline, he cannot withdraw funds. Hence, ID has allowed one-time exit for him. So that could be any time within the 5-year holding period. Yes, yes. But the second, Even after completing 5 years. So if the policy term is of 10 years, during the policy term, one assignment is allowed. okay, during the policy term, and the second buyer who is purchasing will have to hold it to maturity. Correct. It's a held till maturity, HTM product.
Okay. And the debt product which you are referring here is basically a debt mutual fund. Yes, so every ULIP plan has different funds under them. You can place money in equity, you can place money in hybrid. Now they have multiple options of placing your fund value. That is one of the option there, because we want to delink the investment from the market risk. Hence, we are putting everything into a debt fund. We means we are asking insurance company to put, because Rohit, please understand, this assignment will be carried out by respective insurance company, not by the policy exchange. The policy exchange just a platform where the policy holder is meeting the investor. Understood. So basically, the ULIP, since the name itself is unit linked insurance plan, which is basically linked to market returns. After the assignment, this becomes a pure debt product and has no correlation with equity markets. Exactly, Rohit. Because we designed the product that in that way. See, if I'm saying that I'm giving policies of 12 to 13% of IRR, that means I must have a confirmed tool to calculate the IRR. If I remain in equity, there's always an uncertainty, right? I can always project the value. I cannot assure the value. Okay. And even after the second holder has purchased and when he exits at maturity, the gains will remain tax exempt as to whatever Yes, the under initial 1010T. terms were. Yes. Okay, fine. जो भी Thank you. 1010 गाइडलाइंस है रोहित, उसके थ्रू वो टैक्स फ्री रहेंगे. ठीक है. Thank you. Thank you so much. थैंक्स. रोहित, कहाँ से हो आप? Where are you from? I am from Delhi only. अच्छा, okay. So you are with Nivesh, or you are one of the partner with Nivesh? No, I am one of the partners with Nivesh. Great, great. See, Rohit, you must have not heard about this concept earlier. Uh, Suppose, I'm sure you must be in the financial product distribution, if I'm not. Yes. Yes. Suppose I come to you today and say that, Rohit, I have 20-25 lakhs of rupee. Please invest somewhere. I want to earn around 12 to 13% of assured return without taking any risk on the capital. Okay. Can you hear me? Yes. Actually, your voice is breaking in between. Just a second. Huh? Just give me a second, Rohit. Just give me a Yeah, yeah. second. Please take your time. Hope this is much better than before. Yes. It's quite audible. Rohit, I was asking, so suppose you are a financial advisor, I am the investor, I have around 20-25 lakhs to invest. I come to you and ask, Rohit, suggest me some good option. I want to invest my money, but I want a short return of 12 to 13% without taking any risk on the capital. Now, which product you know that it is available in the market and which can deliver my objective? So if it's a risk-free product, then probably it could only be a secondary bond, which is available at a discount and trading with some kind of hold to Correct. maturity. YTM is in double digits. That is the only probability which I can search for without any Yes, Rohit. risk. Exactly, right? Again, there will be two things. Bonds के भी rating होते हैं, Yes. AAA rated, AA rated, then there's junk bonds also, B plus also, B minus also. So probably just to get 12 to 13%, एक और catch आ जाएगा if I say मुझे वो tax free चाहिए. Yes. तो Then probably you will have to go for a government bond, but then the yield will reduce because it may not be available on a discount one, and the coupon may also be not very high. 6 and 7% maximum, correct? Correct. Correct. We have innovated this product to for this objective, I would say. So basically, the 6 to 7% debt return is being leveraged with the price being available on a Discounting. discount. So that adds to Correct. the capital gains basically. तो मैं अपने एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ. सपोज मैं अपने एग्जाम्पल में ही 1 लाख का ये जो प्रीमियम है, और अगर मैंने 20% का गेन पहले दिन ले लिया, करेक्ट, और अगले 2 साल में और 16% ऐड कर लिए मैंने, तो 36% ऐड कर लिया मैंने इन टोटल एब्सोल्यूट टर्म्स में फॉर इन 2.5 ईयर. तो जब मैं इसको एनुअल बेसिस पे करूंगा तो इट विल कम अराउंड
13 to 14% बेसिकली। ओके। सो बिल्कुल सही समझा आपने, पहला गेन तो वो डिस्काउंटिंग से आ गया, और अगला फिर मैंने क्योंकि उसको एक फिक्स रेट पे उसको ग्रो कर लिया है पैसे को, ये उनके लिए है रोहित जो डेट में रहना चाहते हैं। अब एक और इसमें काउंटर पॉइंट आ सकता है कि ठीक है, आपने आशीष जी अच्छा किया डेट में डाल दिया, बट ये भी तो हो सकता है मार्केट बहुत अच्छा कर जाए 1 साल 1.5 साल 2 साल में। आई हैव इन्वेस्टेड 25 लाख हियर, बट आई एम लूजिंग आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ मार्केट। करेक्ट। करेक्ट। उनके लिए भी ऑप्शन है। अब आप देखो इसकी कितना खूबसूरत है ये प्रोडक्ट। सो आर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज दैट वी पुट एवरीथिंग इन डेट फंड, right? This is a standard product. Now, but the flexibility of switching to equity is available with the investor. I hope I'm making sense here, Rohit. Yes, yes, it's optional So basically. once he becomes the owner of the policy, he can utilize all the options, whatever is available in the ULIP policy. In real sense, what is happening in the insurance company record, only the name is getting changed. अगर रोहित की पॉलिसी है तो वहां पे सिर्फ आशीष मित्तल लिखा आएगा, nothing else is getting changed in the policy, right? So suppose if today I want to invest 20-25 lakhs, तो मैं कौन सा रूट लेना चाहूंगा? मैं 25 लाख रुपए यहां दूंगा, मुझे 21% का गेन आएगा, मतलब आई विल गेट यूनिट्स ऑफ 30 lakhs अराउंड इन अ डेट फंड। अगर मुझे इक्विटी का रिस्क लेना है, आई कैन पार्क एवरीथिंग बैक टू इक्विटी फंड देन, एंड वो भी मेरी प्रोसीड टैक्स फ्री रहेगी। सो इट कैन कैटर बोथ काइंड ऑफ कस्टमर। सो रोहित, आई होप यू आर विद मी, Yes, completely understanding. यू अंडरस्टैंडिंग राइट? सो Yes, वन से दैट मुझे तो भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मार्केट की टाइमिंग नहीं करनी, मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप प्लीज मुझे बताओ कितना दे रहा हूं कितना मिलेगा। correct. तो उसके लिए सिंपल हो गया भाई, यू डोंट चेंज एनीथिंग, क्योंकि अगर आप इक्विटी में चले जाते हो तो मेरी एश्योरेंस खत्म हो जाती है, मतलब वो मेरा प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड ऑफरिंग नहीं है। मतलब मैं, आप खुद सोचो ना कि अगर इक्विटी में कोई चला जाएगा तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगा कि क्या रिटर्न आने वाली है उस पर? Correct. निकल भी जा सकता है, वो तो उसका रिस्क है जो वो ले रहा है, करेक्ट। बट it 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 doesn't take away the choice of the investor even to take a gain from the equity market if he thinks so कि उसमें गेन आता है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूं जो अवेलेबल होते हैं हमारे। ओके, सो आई एम शेयरिंग सम ऑफ द ऑप्शंस which are available just to give you an idea that how does it look like. I hope these are visible to you. मैं थोड़ा जूम Yes, करूं। they are visible. सो सपोज हम पॉइंट मतलब रो नंबर 15 की बात कर लेते हैं। We are asking somebody to invest 3 lakh, around 3 lakh 7,500. In 29, he'll get 4 lakh 54, which is minimum assured, at XIRR of growing at XIRR of 12, and absolute return is 48%. And this is assured. रोहित, आप ये हम काफी म्यूचुअल फंड में भी डील करते हैं, उसमें भी हम कम से कम assured इतना नहीं बोल पाएंगे कि आपको 3 साल में इतना मिल ही जाएगा। Correct. अब आप देखो ये वाला प्रोडक्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको 86,000 देने हैं, 133 मिलेंगे, और इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न आपकी 55% की आ रही है। Similarly, the case of the next one. So we have been able to create a product which is giving decent return. रोहित, आप तो ये भी कहीं ना कहीं सुनते होंगे या पढ़ते होंगे, बताते भी होंगे कि भाई निफ्टी का भी 10 साल का एवरेज 14-15% का ही है आईआरआर का, ग्रोथ का, Correct. क्योंकि किसी साल बढ़ता है किसी साल घटता है। द एवरेज विच आर कमिंग वो टैक्सेबल है पूरी तरह से, और रिस्क कितना है उसके अंदर, यू नो दैट वेरी वेल। वीजा भी मैं एक बात कर रहा हूं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जिसमें रिस्क ऑन द कैपिटल मिनिमम से भी मिनिमम कहूंगा उसको मैं, मतलब मनी कमिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज एज सेफ मनी कमिंग फ्रॉम अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ अ बैंक। आई एम नाउ ओपन फॉर द क्वेश्चंस। आई एम श्योर अब काफी होंगे क्वेश्चन, बिकॉज
मैंने काफी कम टाइम में काफी ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है। Ashish ji, how do I pitch to the investor in terms, say, if I am offering him a corporate FD of Mahindra and Mahindra, I can show him that the coupon for 1 year is this, 2 year is this, 3 year is this, 4 year is this. So how do I give him a sheet that if he's going for a policy assignment, then what kind of policy return can he look at in terms? मैं आपको दिखा रहा हूँ रोहित, वो मेरी प्रपोजिशन ही है। ये ऐसी ही दिखती है इन्वेस्टर को मेरी वेबसाइट पे। अच्छा, वेबसाइट पे यही दिखेगा कि अगर वो हाँ, इस टेनर की पॉलिसी ले रहा है, and how does he come to these are all tax exempt, I mean, that करेक्ट। is for sure. हाँ, मतलब अगर उसकी 2.5 लाख से नीचे का प्रीमियम है पॉलिसी का, एनुअल प्रीमियम, Hmm. तो टैक्स फ्री है। Under section 10, अंडर सेक्शन 1010D। 1010D, okay. And this is the return standard XIRR which is being showed for a debt investment. हाँ, यस। So can we also portray him a card showing some equity investment related options? I mean, what रोहित, kind of उसमें फिर equity? उसमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी एक्चुअली। नहीं, रिटर्न्स नहीं दिखाएं उसमें, अगर हम वी कैन ओनली शो हिम दैट ही कैन गो फॉर इक्विटी ऑप्शन, लाइक हाउ डू वी पिच हिम? देखो रोहित, बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको समझाया। करेक्ट। आई होप यू गॉट माई मैसेज कि एब्सोल्युटली अगर आप मुझे आज 10 लाख देते हो, तो मैं म्यूचुअल फंड में आपको 10 लाख की यूनिट दूंगा। मैं आपको 12 या 13 लाख की यूनिट तो नहीं दूंगा ना। करेक्ट। वीजा वी इन दिस प्रोडक्ट, आपको जो पहला असाइनमेंट होके वैल्यू मिलेगा, वो 22% ज्यादा ही होगा। जो कि इस कार्ड में विजिबल नहीं है। नहीं नहीं, वो आप समझ नहीं, वो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है ना रोहित। सी, जैसे ही मैं उस फेज में जाता हूं, तो देयर कुड बी मेनी इफ एंड बट्स विच विल ओपन अप। Okay, so let us leave that and just stick to this one, which is a debt product. करेक्ट। So in this case also, the value which is being added to his initial investment is not visible to the investor. नहीं नहीं, मतलब उसको कितना पे करना है, करेक्ट। Yes, that's correct. उसने तो 3,07,533 देना है, या ये प्रीवियस अमाउंट जुड़ के इतना आ रहा है? नहीं नहीं, उसकी देखो सिंपल होता है ना, आप जो बॉन्ड्स होते हैं या कुछ भी होता है, आप यही देखते हो ना, मैंने 10 लाख का एफडी बनाया और आपको 2 साल बाद ये मिलेगा, ये होता है बैंक में, ऐसे लिखा मिलता है। करेक्ट। हम भी यही कहना चाह रहे हैं ना, आपने 3,07,533 रुपये लगाए, और आपको मिनिमम अश्योर्ड 4,54,094 रुपीज मिलेंगे। अच्छा, पिछला उसको हम दिखाई नहीं रहे। मतलब आप वो चाहे तो डिटेल्स देख सकता है, उसकी मर्जी है, राइट। ओके। बट ओके। वो आई एम श्योर एक नया इन्वेस्टर आएगा, वो देखना चाहेगा भी कि भाई ये कैसे आप 3 लाख निकाला है आपने, कितना उसने पहले दे रखा है, मुझे मुझे प्रीमियम करेक्ट। कितना इसमें ऐड हो गया है, सब कुछ वो देखना चाहेगा। बट एज अ स्टैंडर्ड प्रोपोजिशन, जब वो कंफर्टेबल हो जाता है हमारे कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो सिर्फ ऐसे देख के चूज करता है कि ओके, ना आई हैव 10 lakhs टू इन्वेस्ट, मैंने 3 3 5 का कॉम्बिनेशन बना के एक 10 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट बनाया, एंड देन उसकी एक लिक्विडेशन वैल्यू होती है। ओके। And what is the insurance related aspect which he gets व्हाट इज द apart from the, इंश्योरेंस? what is the insurance cover he gets, like the नो नो, देयर इज original? नो इंश्योरेंस कवर इन दिस। Yeah, because the original ULIP will also be having some insurance. Okay, okay. So let me further explain the concept. What is happening in assignment? The cover of original policyholder continues. Okay, he's just not paying the premium. आप भी समझें कि अगर वो नहीं होगा, तो एक तो आइडिया अलाउ क्यों करेगा इसको, दूसरा क्योंकि उसने बेनिफिट की बात करनी ना अपने पॉलिसी होल्डर की, दूसरा जो डिस्काउंटिंग मिल रही है आपको, उसकी दो वजह है। एक तो अर्ली एग्जिट मिल रहा है उसको, जो पैसा 5 साल में आना था वो 2 साल में आ रहा है। Okay. दूसरा उसका क्योंकि एक और लेयर करता है उसको, मेरा पॉलिसी कवर कंटिन्यू होगा यहाँ से। अच्छा, तो इनिशियल इन्वेस्टर का पॉलिसी कवर कंटिन्यूड है, विच इज नॉट पास्ड ऑन टू द न्यू इन्वेस्टर, बिकॉज इट्स बट ए द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इट इज नॉट द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस, बट द बेनिफिट ऑफ 1010D is enjoyed by both of them. नहीं, बोथ का देखो, मेच्योरिटी तो किसी एक को ही मिलेगी ना इसकी। जो ओके, अच्छा। ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर है, ही विल जस्ट बिकम अ करेक्टर इन द पॉलिसी, जिसका लाइफ कवर है, उसका नो, बट कोई भी राइट नहीं है इस पॉलिसी के ऊपर। yeah, but if he passes away, then he gets the compensation amount. करेक्ट करेक्ट, इसीलिए हम बोलते हैं उसको पार्शियल कवर। डेथ के केस में क्या होगा, मैं अपने एग्जांपल पे आता हूँ। अगर लाख रुपए का प्रीमियम है, तो मेरा अजम्पशन है 10 लाख का सम अश्योर्ड होगा उसमें। 10 times, correct? अगर वो मानो यही पॉलिसी लेता है, मैं इसकी बात करता हूँ, और इसमें मान के चल रहा हूँ लाख रुपए का प्रीमियम है इसी में, तो Okay. 3 लाख उसने अभी दिए, करेक्ट।
यस। और ये मेच्योरिटी आनी 29 में। ओके। अब जब वो 3 लाख रुपए कुछ पे करेगा तो उसकी जो फंड वैल्यू खुलेगी वो कुछ ऊपर खुलेगी, मे बी 3,30,000 या 3,40,000, वट एवर विल बी दी सम। ठीक है। एंड देन इट विल ग्रो एट सम पेस टू रीच 445 454 इन बाय 2029। करेक्ट। ओके। ओके। सपोज ही डाइज इन 27, और मैं मान के चलूं तब तक मेरी वैल्यू 4 लाख पहुंची है, अजम्पशन ले रहा हूं मैं ओके। पॉलिसी की। तो क्या होगा, जैसे ही वो मरेगा तो एक इवेंट ट्रिगर होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख पे करना है उसकी पॉकेट से। करेक्ट। एक पॉलिसी का टिपिकल यही होता है ना, अगर वो मरता है तो 10 लाख रुपए सम अश्योर्ड उसके जो भी ओनर है उसको जाता है, ओनर को जाता है, ध्यान रखना आप। और इसमें चेंज क्या है रोहित, ओनर और पॉलिसी होल्डर अलग अलग हैं। 90% करेक्ट। केसेस में ओनर और पॉलिसी होल्डर सेम होते हैं। सेम। करेक्ट। तो हमें ऐसा अजम्पशन रहता है कि भाई वो मर गया तो नॉमिनी आएगा पिक्चर में। इसमें नॉमिनी पिक्चर में अभी नहीं आएगा क्योंकि ओनर जिंदा है इसका। करेक्ट। बट हुआ क्या है, जब ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, आइडली तो 10 लाख रुपए सीधे इन्वेस्टर को आने चाहिए, अगर टेक्निकली स्पीकिंग बोला जाए। करेक्ट। बट प्रेजेंट इन्वेस्टर। क्योंकि प्रेजेंट इन्वेस्टर को, जो कि ओनर है पॉलिसी का। हम्म। बट अगर हम ऐसा कर देते रोहित तो इसमें एक मॉरल हजार्ड आ जाता है इस प्रोडक्ट के अंदर। वेरी करेक्ट। कि भाई कल की डेट में किसी का 50 लाख का कवर है और वो कोई मिस हैपनिंग करा के उसके साथ, एंड देन ही कैन माइट गेट इनटू दिस। तो हमने क्या करेक्ट। क्लॉज डाला इसमें एग्रीमेंट में, जो एक एग्रीमेंट हम साइन कराते हैं पॉलिसी असाइनमेंट के टाइम, इन्वेस्टर विल गेट द इन्वेस्टेड सम एंड द कमिटेड आईआरआर फर्स्ट। से अगेन, से अगेन। इन्वेस्टर विल गेट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड कमिटेड आईआरआर ऑन दैट फर्स्ट। ओके। उसको 10 लाख में से वही मिलेगा जो उसने इन्वेस्ट किया और जो हमने उसको प्रॉमिस किया है। ओके। रिमेनिंग विल गो टू द नॉमिनी ऑफ द पॉलिसी। ओके, सो दैट विल बी इससे डन। इससे इससे क्या हो गया, एक तो उसका कवर कंटिन्यू रहा, बट हम्म। उसको बोलते हैं पार्शियल कवर कंटिन्यूएंस एक्चुअली। करेक्ट। क्योंकि जो बाकी के प्रीमियम का वो ऑलरेडी कंसिडर वैल्यू ले चुका है ना, वो भी तो पहले। मतलब मानो जब ये 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसमें पीएच का भी कुछ 1.5 लाख रुपए जा रहा होगा इसके अंदर, 1.5 या 2 लाख रुपए। करेक्ट। तो वो तो ऑलरेडी उसको इन कैश कर चुका है, बिकॉज उसने हम्म। पॉलिसी जो असाइन करी है वो विद कंसिडरेशन करी है। करेक्ट। इट इज नॉट विदाउट कंसिडरेशन। लव यस। एंड अफेक्शन में नहीं है मतलब। So it's a valid contract because there is a element of valid consideration also. डेफिनेटली। तो मैं एक बार अब वापस से कॉन्ट्रैक्ट पे ही आता हूँ, वो शो करता हूँ कि कैसा दिखता है वो कॉन्ट्रैक्ट। इट विल मेक थिंग्स मच क्लियर टू यू। तो एक पॉलिसी आफ्टर इशुएंस बिकम्स अ एसेट इन द हैंड ऑफ द, अब मैं इन्वेस्टर बोलूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना, इन्वेस्ट उस टाइम का इन्वेस्टर पॉलिसी होल्डर ही है, Original investor. ओरिजिनल इन्वेस्टर। राइट, वो उसके हाथ में एक एसेट की तरह है, और ये एसेट का ट्रांसफर हो रहा है। और जब वो एसेट का ट्रांसफर हो रहा है तो डेफिनेटली एक एग्रीमेंट बनेगा दो पार्टीज के बीच में, जैसे प्रॉपर्टी बिकती है। होप दिस इज विजिबल। Yes. तो ये नितिन मदान जी हैं जो पॉलिसी दे रहे हैं, और औसफ अहमद हैं जो पॉलिसी खरीद रहे हैं इस केस में। तो ये एग्रीमेंट पूरा बनता है, इट हैज ऑल द टीएनसी विच आर रिक्वायर्ड इन द फेवर ऑफ द इन्वेस्टर, दैट ही कैनॉट कम बैक, ही कैनॉट क्लेम, ही इज इन फुल होशो हवास एंड ऑल, जो भी एक लीगल टर्मोलॉजीज होती है। इट इज साइन डिजिटली। अच्छा रोहित, एक और चीज है, आप ये पूछ सकते हो फिर पॉलिसी एक्सचेंज का क्या रोल है। असाइनमेंट तो इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, Correct. तो फिर हमारा क्या रोल है इसके अंदर पूरी तरह से। हमारा See, रोल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चलाने का है, और हमारा टेक है जो इसको डिजिटली पॉसिबल बनाता है। अदरवाइज कोलकाता बंदा जो बैठा है, उसकी पॉलिसी को मैं कश्मीर में कैसे दूंगा, so या you are दिल्ली में कैसे basically दूंगा। ये वो you are a कोलकाता से फ्लाइट लेके तो नहीं आएगा। this is a licensing platform. हाँ कह सकते हैं, ऐसा लाइजनिंग प्लेटफॉर्म। और इसीलिए क्योंकि, और पेमेंट भी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से आनी है, तो मेरी स्टेबिलिटी पे या मेरे अपने रहने ना रहने पे कोई रिस्क नहीं है इन्वेस्टर का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रोकर ने कोई रिलायंस का शेयर दिलवाया और आपके डीमेट में रखा हुआ है। Correct. अगर वो ब्रोकर नहीं भी रहा तो डीमेट में शेयर है आपका। Correct. ये तो एक हम पॉलिसी असाइन करा के, पॉलिसी उसके नाम असाइन होकर उसके इंश्योरेंस अकाउंट में दिखती है इन्वेस्टर के। और ये वो डेथ क्लेम का बता रहा था मैं आपको, ये वो क्लॉज है जो रेस्ट्रिक्ट करता है कि इन्वेस्टर विल गेट व्हाट इज द करंट फंड वैल्यू ऑफ द, इन द केस ऑफ यूलिप।
या अगर उसकी आईआरआर हमने जिस हिसाब से दी है और अगर वैल्यू कम है तो वो पैसा मिलेगा जो उसको हमने कमिट किया था एज अ इन्वेस्टर। So one condition which is necessary for the new investor to get returns up to maturity is that the original investor should survive the term of the policy. इनफैक्ट रोहित, अगर वो डेथ होती है, जो कि बहुत रेयर होता है, हमने 3 साल में 3 ही डेथ क्लेम आज तक हैंडल किए हैं। Okay, इनफैक्ट उसकी आईआरआर बढ़ जाती है, इन्वेस्टर की पैसा जल्दी मिल जाता है। correct. आप सोचो ना, जिसको 29 में मिलना था वो पैसा पहले ही मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा। क्योंकि वो तो बस, आप सोचो ना, अब तो क्या है, जो जो उसमें गेन आना था वो तो आ गया। अब तो बस Correct. वो लेके बैठा हुआ है, जिससे कि वो चलो 7-8% पे बढ़ रहा है, बिकॉज वो निकाल नहीं सकता उस पैसे। Hmm. So ये Paul, अलॉन्ग so विद द चेंज ऑफ ओनरशिप फॉर्म डिजिटली सबमिट होता है इंश्योरेंस कंपनी को, जो मेरा प्लेटफॉर्म करता है। so wet signatures are not required anywhere. नो, इट्स ऑल ए डिजिटल सिग्नेचर, जिसका लीगल फ्रेमवर्क पूरा साथ में लगा होता है, एंड इज एडमिसिबल इन द कोर्ट। Okay, आईपी एड्रेस, कहाँ पे, कैसे, कौन से ओटीपी से, कितने टाइम पे आपने इसको साइन किया है, विच इज टिपिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो आजकल सारे ही लोग कराते हैं। OTP based signature. ओटीपी बेस्ड सिग्नेचर, आधार ओटीपी भी है, दोनों ऑप्शन है। So basically, Policy Exchange is a registered company. सो पॉलिसी एक्सचेंज इज अ, Is a registered company. यस, वी आर अ रजिस्टर्ड कंपनी एंड फंडेड कंपनी, फंडेड स्टार्टअप ऑल्सो नाउ। अच्छा, दिस इज अ फंडेड स्टार्टअप। सो ओके, बिकॉज आपने पॉलिसी एक्सचेंज के बारे में कुछ बताया नहीं तो मैंने इसलिए पूछा। मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली पॉलिसी एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म जो सबसे पहला काम करती है रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने का। ये असाइनमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेरा एग्रीमेंट हो उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ। करेक्ट। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये असाइनमेंट पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, एक तरफ सारे पॉलिसी होल्डर को रजिस्टर कराना जो पॉलिसी देना चाहते हैं, और एक तरफ सारे इन्वेस्टर को रजिस्टर कराना जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो पॉलिसी पिकअप करना चाहते हैं। करेक्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। एक तो मैंने एक पीछे से एग्रीमेंट किया इंश्योरेंस कंपनी, और एपीआई से कनेक्ट किया अपने साथ इंश्योरेंस कंपनी को डिजिटली फ्लो करने के लिए। करेक्ट। दूसरा काम क्या किया, दोनों पॉलिसी होल्डर इसको मिलवाया, और इसको ऑपरेशनली हैंडल करना भी मेरा ही काम है पूरी तरह से। इन्वेस्टर बस क्लिक करता है हमारे केस में। ओके। तो मैं भी दिखाता हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसे दिखती है, हाउ द इन्वेस्टर गेट्स द इंफॉर्मेशन। एक इन्वेस्टर कैसे पॉलिसीज को पिकअप करता है, कहाँ वो पॉलिसीज दिखती हैं उसको, और सेम पॉलिसी जो मेरे प्लेटफॉर्म पे दिखती है गाइस, कमे 24 आ गया कलेक्शन फाइल तुमने 23 से देखेंगे एक कार्ड वाला हो गया उदय धीमे। वो सर 36 लाख से 95 लाख को जा रहे हैं 59 लाख अगले 6 दिन में कुलदीप, रोहित, हाय, माय वेबसाइट इज विजिबल टू यू। यस, इट्स क्वाइट विजिबल। सो दीज मैंने जो पॉलिसीज दिखाई थी आपको, वो इस तरह लिस्टेड दिखती है मेरी वेबसाइट पे, राइट? ओके। अगर इन्वेस्टर को ये पिकअप करनी है, उसको सिर्फ क्लिक करना है यहाँ पे, ओके। एंड इट विल बी पिक्ड अप बाय द इन्वेस्टर। दैट्स इट। इन्वेस्टर का यही काम है बस। बाकी पूरी प्रोसेसिंग, डिजिटल साइन इनिशिएट कराना, ई साइन करा के फॉर्म को डिजिटली मूव कराना, ये सब हमारा काम है। So we could also get you people who want to surrender their ULIPs in case. यू कैन, बट उस पर कोई इंसेंटिव नहीं है। सी अच्छा। सी व्हाट इज हैपनिंग, दैट द एलिजिबल पॉलिसी होल्डर का जो मैक्सिमम ट्रैफिक होगा वो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से ही मिलेगा। ओके। ओके। भाई आप मुझे 2-3 ले भी आओगे तो कोई गारंटी नहीं है ना कि उन पॉलिसी होल्डर के आईआरआर बने ही बने। एब्सोल्युटली।
आईआरआर तो तभी बनेगा जब उसकी पॉलिसी में उस तरह की वैल्यू होगी, प्लस क्या पता वो राजी भी होगा नहीं होगा डिस्काउंटिंग लेने के लिए। And तो Policy Exchange is linked to all the major insurance providers in India. एज ऑफ नाउ 7, Okay, only seven. as of now, and we are of course growing as we Okay. go. You can see all the policy listed. So Edelweiss, Reliance, India First, Bharti, Max. So these are a major partner as of now. And of course, we are adding more as we grow. आज से हम Absolutely. 6 महीने पहले बात करते तो एक ही थी कंपनी थी हमारे साथ. And what is the incentive for the partners? That will be communicated via respective partner. Means the Nivesh will confirm to you. Okay, okay, fine. So I hope I want to Rohit. I'm so thankful that you are taking it up and asking all this question. It shows the interest in the product. I just want to have all the Q and A's and the how do you like the idea of the product? It's a very novel idea, and I think it's a very niche product of its kind in the Indian market because we have been aware of reinsurance, which is mainly done by the insurance companies themselves. So here, when a client wants to exit a long policy, which may completely for personal reasons without losing his cover, I think it's a brilliant idea, and the startup deserves. I hope you are registered in DPIIT or Udyam We are or. registered everywhere. It's the third round we have raised So in 1 year. this idea deserves a complete applause and highest level recognition, I think. Because Rohit, we are solving a problem here. At the same time, there is no loss for anybody. तो शेयर मार्केट में क्या होता है, किसी का गेन किसी का लॉस ऐसा बोलते हैं, Yes, this is राइट? a win-win situation. इट्स अ विन विन सिचुएशन जहाँ पे पॉलिसी होल्डर की इमरजेंसी में पैसा मिल रहा है. तो वी हैव सीन द केसेस जहाँ पे उसकी मदर बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, 1 घंटे के अंदर पैसा दिलवाया हमने, जो Absolutely कि heads off idea. 7 दिन में भी शायद अगर वो सरेंडर का पॉसिबिलिटी भी होती तो शायद इंश्योरेंस कंपनी देने में भी 7 दिन लगा देती उसको. Absolutely. प्लस Brilliant idea. इन्वेस्टर को एक ऐसा मौका मिल गया जो नहीं मिल रहा था कि भाई मुझे. सो आई एज अ बैंकर आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ लिक्विडिटी. मैंने कभी कोई एफडी नहीं बनाई क्योंकि मुझे कभी वो 6-7% कभी लगा ही नहीं कि मुझे वो पैसा ग्रो करना भी चाहिए उस लेवल पे. बट यहाँ मैं बड़ा कंफर्टेबली होके, बिकॉज मुझे कोई, ऑल्दो आई कैन ऑलवेज गो इन इक्विटी हियर एज वेल, बट मुझे एटलीस्ट एक कंफर्ट है कि भाई ठीक है, वो द मनी इज ग्रोइंग एट 7 12 to 13%, which is decent enough. Oh, and that comes with a tax-free advantage. So if you see the Yes, tax-adjusted return, it will be much higher. If a guy is in 30% tax slab, his करेक्ट. tax-adjusted return is much more than the IRR. यस. तो अगर मैंने मानो इक्विटी में लास्ट ईयर 10 लाख 12 लाख कमा भी लिए, बट 20% तो मुझे टैक्स देना पड़ गया उस पर. Correct. और कितना बड़ा सम लगा के उतना बड़ा रिस्क लेके मैंने वो काम किया कि कभी भी लगता है कि कभी भी एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. Correct. तो उसके वीजा भी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. और जिसको एसटीपी भी करना है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी करना है, वो यहाँ 20-25 लाख रुपए लगाए और सिस्टमेटिकली कन्वर्ट कर ले इसको इक्विटी में, अगर उसे इक्विटी का रिस्क भी लेना ही है तो. एटलीस्ट उसका प्रिंसिपल ही 30% 20% ऊपर शुरू होगा तो उसके प्रिंसिपल बचे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे. Correct. और क्योंकि लॉन्ग रन में है, 2-3 साल में, जैसा हम बोलते हैं इक्विटी की रिटर्न कम से कम 3-4 साल में तो 10-12% तो आ ही जाती है. Correct. तो वो तो बेनिफिशियरी रहने वाला है उसके लिए. और It's a थोड़ा very भी good. टाइमिंग कर सकता है देन तो फिर कुछ भी हो सकता है. जैसे मानो आज मार्केट गिर रही है आजकल, वो उसको डाल के इक्विटी में ले आए, और जब लगे मार्केट एक डिसेंट लेवल पे तो उसको वापस से डेट में शिफ्ट कर ले. वहां भी कोई टैक्स पे नहीं करना उसको, इस स्विचिंग के लिए भी पे नहीं करना. Correct. तो इट बिकम्स वेरी लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. And the best part is this is recognized. This is a completely IRDI authorized procedure. बिल्कुल. बिकॉज आप खुद सोचो ना कि रोहित, अगर आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है तो आप कब श्योर होगे कि रजिस्ट्री हो गई है? जब म्यूटेशन हो जाएगा एमसीडी में, Absolutely. Absolutely. तभी तो श्योर होगा ना कि वो प्रॉपर्टी 100% रोहित की हो गई है. Correct. हमारे केस में भी यही है. आपकी ओनरशिप चेंज होती है, आप जाके इंश्योरर के पास चेक करते हो, भाई मेरी इस पॉलिसी का जो एसेट है वो मेरे नाम आ गया नहीं आ गया. Absolutely. वो अथॉरिटी है उस चीज की ना, तो वो कंफर्म करती है. कंफर्म क्या, आप उसको कस्टमर केयर में फोन करो, आप ऐप पे लॉग इन करो, आप उसकी वेबसाइट पे लॉग इन करो, यू कैन सी द सेम पॉलिसीज देयर Correct. इन योर नेम. तो वही मैं कहता हूँ कि क्या होता है ना,
पैसा तब रिस्क में आता है जब आपका अकाउंट से निकल के वो थर्ड पार्टी को जाता है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वो पैसा बिल्डर के पास चला गया, अब वो बिल्डर की मर्जी पे है, वो बना देगा तो ठीक है, नहीं तो आप कोर्ट कचहरी करते रहो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पैसा निकल के आपके अकाउंट से डेबिट होता है और आपके ही इंश्योरेंस अकाउंट में चला जाता है, Correct. वो आपके ही नाम रहता है। So money is going to the insurance company only. हाँ, so ultimately money going to an insurance company, of course it is routed through me because I am the collecting party Conduit. with the agreement, because Yes. somebody has to take the ownership। चलो इसमें भी हम बात कर लेते हैं रोहित, की दो तीन चीजें आती हैं। अब मानो आपने एक पॉलिसी होल्डर को चूज कर लिया मेरी वेबसाइट पे, वुड यू बी कंफर्टेबल पेइंग हिम डायरेक्टली? Not at all. अगर वो कोलकाता में बैठा है और उसने कंफर्मेशन ही नहीं दी इंश्योरेंस कंपनी को कि मुझे पेमेंट आ गया है, तो फिर तो इंडोर्समेंट ही नहीं होगा ना। Correct. तो यू नीड somebody who takes this guarantee. So our escrow gets this guarantee for you. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे साथ पॉलिसी को होल्डर को पेमेंट हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम डेबिट कर लेती है और वो इंडोर्समेंट हो जाता है पॉलिसी का। Okay. Understood. उसी लिए हमारा एग्रीमेंट एंड वी बिकम द कलेक्टिंग पार्टी और रिकवरी एजेंट और वट एवर नेम यू कैन गिव फॉर द फॉर द प्रोसेस। Yes. मैं चाहूंगा और भी काफी लोग हैं साथ में, आई थिंक निशा, आयुषी, ये रोहित, ये अंशु, ये मतलब आर दी एम्प्लॉयज और कोई पार्टनर भी हैं और हमारे साथ। रोहित, आई एम सो सो थैंकफुल टू यू कि हाय आपने आशीष जी, प्लान के। दिस इज शरद। हाय शरद, हाय। या आशीष, मुझे एक चीज बताइए। जैसे अभी आपने बताया कि सपोज करिए कि सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीस का है एंड द ओरिजिनल इन्वेस्टर, ओरिजिनल इंश्योरेड पर्सन हैव पेड फॉर द 2 years, सपोज 2 लाख रुपीज। आफ्टर दैट इन्वेस्टर टेक ओवर दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस और करेक्ट, पॉलिसी। करेक्ट। तो उसके ऊपर में वो जितने दिन तक जितने साल तक उसका प्रीमियम देगा एंड उसके ऊपर जो अक्यूमुलेटेड बोनस ऐड होता रहेगा, वो इन्वेस्टर का पार्ट है, राइट? हाँ, देखिए एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो राइट। गई ना, तो हाँ जी, लायबिलिटी और एसेट दोनों ही इन्वेस्टर के हैं। करेक्ट। तो अभी जैसे क्या है कि इन केस बिफोर मेच्योरिटी अगर ओरिजिनल इंश्योरेंस को कुछ हो जाता है, तो डेथ जो हो जाती पूरा है। का पूरा सम, हाँ, पूरा का पूरा सम एश्योर्ड जो है, वो तो उसके लिए तो एलिजिबल ओरिजिनल इंश्योरर ही है, राइट? खाली वी आर एलिजिबल फॉर बोनस पार्ट। नो 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 शरद, आई थिंक आप थोड़ा इसको ट्रेड से कंफ्यूज कर रहे हैं अभी। सी, हम कौन कौन से प्रोडक्ट असाइनमेंट होते हैं, एक तो यूलिप होता है और एक नॉन पार होते हैं गारंटेड प्रोडक्ट्स। ओके। यस। अगर गारंटेड है तो उसमें तो और अच्छा है, क्योंकि मानो किसी ने 4 प्रीमियम भरे हैं, 4 लाख रुपए दिए हैं, तो उसमें सरेंडर वैल्यू 30-40% होती है। ओके। ओनली डिफरेंस बिटवीन यू फाइंड इन यूलिप एंड ट्रेड इज, ट्रेड का थोड़ा टेन्योर लंबा होता है। आप समझे, ओके। यूलिप में तो कोई बोनस नहीं होता ना, यूलिप में तो जिस जगह फंड लगा है इस मार्केट लिंक प्रोडक्ट, राइट। उसमें तो कोई बोनस नहीं होता। बोनस होता है पार प्रोडक्ट्स में। ओके। ओके आशीष जी, ठीक है, और हम क्लियर माय असाइनमेंट पॉइंट। कराते हैं नॉन पार का और यूलिप्स का, जहां पे गारंटेड होता है। ओके। तो ट्रेड वाले प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अपनी। टिपिकली मैं आपसे पूछता हूँ, आज की डेट में जो भी जितने भी इंश्योरेंस प्लान है, उनका मैक्सिमम आईआरआर कितना जाता होगा? लंबे प्लान का, 10 साल वाले प्लान का, 8 साल वाले प्लान का, 5? 8 to 10। हाँ, नहीं एट सर, परसेंट कहाँ एट अप्रोक्स, टू टेन आ 7 8। जाएगा? तो बहुत ही मजे आ जाएंगे। इंश्योरेंस प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें इंश्योरेंस होता है, जो ट्रेडिशनल प्लान जिसको अच्छा, बोलते हैं, ओके। हाँ हाँ हाँ। जिसमें हम अपने इन्वेस्टर को समझाते हैं भी आप 1-1 लाख 5 साल दीजिए, फिर 1-1 लाख वापस आना शुरू होगा 10वें साल से। राइट, ठीक है। दिखने में बहुत सुंदर लगता है कि हाँ यार 1-1 लाख दिया फिर वापस आ रहा है 10 साल तक, पर अगर उसकी टिपिकल आईआरआर निकाली जाए तो वो 5 से ऊपर नहीं निकलती किसी भी कंडीशन में। ओके। आईआरआर मतलब कैश फ्लो के हिसाब से कि भाई आपने कब पैसा दिया और कब हम्म। मिला आपको। because IRR is the factor of tenure and the money which is being invested. So what I'm telling you, Sharad, this product। अच्छा, और भी डाउट्स हैं आपके? पहले वो खत्म कर लेते हैं। नहीं आशीष जी, यही था मेरा मेन क्वेश्चन, यही था जो आपने अभी बताया। आप कहाँ पे शरद जी, आप भी दिल्ली बेस्ड हैं? हाँ, मैं अभी राइट नाउ आई एम इन दिल्ली, वैसे मैं कोलकाता बेस्ड हूँ। अरे वाह, कोलकाता में तो हमारे काफी पार्टनर हैं जो
प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। अच्छा आप ये अच्छा। कोलकाता मैं में सबसे फेमस है ईस्टर्न फाइनेंशियरीज, ईस्टर्न फाइनेंशियल, ओके। है ना? ईस्टर्न वाले जो काफी मतलब हाँ जी हाँ जी। वो क्लेम करते हैं कि राइट। वहाँ के ईस्ट के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड के। वो हमारे प्राइम पार्टनर है। ओके अमरीश जी हैं वहाँ पे, अंशु जी हैं वहाँ पे, अमरीश अग्रवाल। ओके। अच्छा जी, मैं पर्सनली उनको नहीं जानता, बट हाँ, मे बी, पर आपने ईस्टर्न हाँ का नाम नाम सुना सुना जरूर हुआ है। होगा। हाँ हाँ, हाँ, नाम सुना हुआ है, यस। वो 1 साल से हमें हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके। एंड दे लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज कोई भी एसेट क्लास ये से मीट नहीं कर पाती है। अच्छा, आशीष जी, ये जो XIRR आ रहा है आपके प्लेटफॉर्म वाले पेज पे, हाँ जी। ये दिस इज पोस्ट टैक्स और प्री टैक्स रिटर्न? नहीं, दिस इज प्री टैक्स, तो टैक्स तो है ही नहीं ना हमारे प्रोडक्ट में। ओके, सो इट्स पोस्ट एंड प्री आर सेम? सेम, बस एक ही क्लॉज है इसमें, एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए पॉलिसी का। ओके। एक्यूमुलेटेड एनुअल प्रीमियम, यानी कि अगर कोई अपने घर में पॉलिसी ले रहा है, मैं ये भी कह रहा हूँ 2.5 लाख रुपए तक का साल का प्रीमियम, यानी कि अगर मेरे केस में बात करेंगे तो लगभग 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट का जो मेच्योरिटी आएगा वो टैक्स फ्री होगा लगभग। क्या था, एक रूल आया था 1 फेब 2021 में, अगर आप उससे पहले तो सारी टैक्स फ्री होता था यूलिप। हम्म हम्म। उसके बाद रूल आ गया था कि अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर होता है प्रीमियम एक्यूमुलेटेड पूरे साल का, तो आपकी पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, तो आप मान के चलिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए टैक्स फ्री है ये। ठीक है आशीष जी, समझ गया, क्लियर है। और कोई क्वेश्चन? आई एम श्योर होंगे तो काफी। आशीष जी, ये 2.5 लाख की लिमिट है या इट शुड बी 10% ऑफ द सम अश्योर्ड? आई मीन। देखिए, उसमें क्या है, 2.5 लाख की लिमिट है एज पर दी लॉ, लेकिन 10% वाली बात जो आप कह रहे हो, मतलब 10 टाइम्स कवर होना चाहिए टू मेक द पॉलिसी टैक्स फ्री 1010D के अंडर। सपोज ओके आपने 10 टाइम्स कवर नहीं लिया और 5 टाइम्स ही कवर लिया, तो फिर वो 1010D के अंदर टैक्स फ्री नहीं आती है। ओके ओके। वो दो अलग अलग क्लॉजेज हैं ये, दो अलग अलग है, अंडरस्टूड। मतलब आपने अगर 1 लाख का प्रीमियम भी लिया और 5 लाख का ही कवर लिया, कि कुछ लोग पहले ना सिर्फ टैक्स बचाने के लिए यूज करने लगे थे इसको, करेक्ट। तो इसलिए वो आया था। रोहित, आई एम श्योर क्वेश्चंस तो और भी होंगे आपके, मतलब वी कैन हैव अ फॉलो अप डिस्कशन ऑल्सो। Yes, as of now, things are pretty crystal clear, and the way you have explained has been very beautiful. So, we are grateful to you for a good learning session. नहीं नहीं, आई एम सो थैंकफुल टू टेक आउट टाइम एंड ज्वाइन। मैं अंकित को रिक्वेस्ट करूंगा, अंशु जी को, अंशु को, वो एक हमारा लिंक है, मेरा कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए थे, अगर आपने कभी नाम सुना हो, ऑल्ट इन्वेस्टर करके एक काफी फेमस यूट्यूब चैनल है फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। Oh, okay. Actually, you are in AIFs also. नो नो, वी आर नॉट एआई, एआईएफ अलग होता है। एआईएफ इज लाइक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। Yes. Actually, you are into और alternate उसके अलावा एक investments. और चीज होती है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे इनवॉइस फाइनेंसिंग, P2P, ये सब चीज आ जाती है। Okay. Invoice discounting वगैरह. क्योंकि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है ना, तो वो लोग जनरली उसको इस कैटेगरी में रखते हैं, ऑल्दो वी से वी आर नॉट इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। हमारे प्रोडक्ट में कोई रिस्क नहीं है। Yes. देखिए, इनवॉइस फाइनेंसिंग हो जाए या P2P हो, सब में एक इनहेरेंट रिस्क होता है। Correct. P2P क्या है, रोहित जी पैसा चाह रहे हैं, आशीष ने पैसा दे दिया, पर कहीं ना कहीं रोहित चाहे मतलब जो भी काम कर रहे हैं अच्छा हो, बट डिफॉल्ट आने की सारी पूरी संभावना है उसके अंदर। Hmm. इनवॉइस फाइनेंसिंग भी यही है, आप एक तरह से किसी को लैंड कर रहे हो फॉर अ शॉर्टर टर्म के लिए, राइट? वो लैंडिंग एप्लीकेशन ही है बेसिकली। हमारा उसमें नहीं है, बट उनके ओनर थे यश रूंगटा, उनको कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था, तो दे इनवाइटेड अस ऑन देयर पॉडकास्ट। Okay. तो काफी अच्छा इंटरेक्शन हुआ है उनसे। आई आस्क अंकित टू शेयर दैट लिंक विद यू ऑल। एक बार आप उसे और देख लेंगे, 15-20 मिनट का है ये, बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कशन हुआ है इसके ऊपर। We'll Understood. share you guys. एक निशा जी भी हैं, मुझे दिख रही हैं। थैंक्स रोहित, थैंक्स शरद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप प्लीज स्टे बैक जब तक ये वेबिनार खत्म नहीं हो रहा है। निशा, Yeah, thanks. अंशु जी हमारे साथी हैं, मतलब एम्प्लॉय हैं या पार्टनर हैं? नहीं, Anshu is the employee of Navy. So if there are no follow-up questions, we can have one-on-one discussions also, Rohit, going forward.
Yes, we are pretty clear as of now, and things as they unfold, we will be in touch with you to get more clarity in case there is something. करेक्ट। और काम शुरू करते हैं मतलब दिल्ली में तो ये बहुत ही कि हम तो खुद दिल्ली एनसीआर बेस्ड है, तो आपको तो मतलब सपोर्ट की कोई इशू ही नहीं है, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि कोई मुंबई का होगा या बेंगलोर का होगा तो लगता है ना कि भाई दिल्ली का फर्म है, दिल्ली की चीज है, कुछ हो गया या इन्वेस्टर तो Correct. मुझे आके पकड़ेंगे यहाँ पे, या इन्वेस्टर तो मुझे बोलेंगे आके। Hmm. वैसा आपको तो और कंफर्ट मिला हुआ है हमारे साथ, तो एक बार स्टार्ट करते हैं काम को। जी बिल्कुल। अंकित एक बार सारे सैंपल जो मैंने दिखाए हैं एग्रीमेंट के और जाके फॉर्मेट के, और प्लस वो लिंक शेयर या कर, मैं शेयर कर देता हूँ अंशु के साथ, वैसे मैंने शेयर किया हुआ है। एक बार दोबारा से कर देना सो दैट इट अंशु गोज टू ऑल। अंशु आप, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप दोबारा शेयर कर देना इनको। Yes, sir, we will हाँ, circulate it. अंशु एनी ओके। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके? Uh, I think we have done with the questions, sir. Thank you, थैंक sir, and thank you to all the participants also for joining with us. थैंक यू अंशु। थैंक अंशु, थैंक यू। Thank you.